Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, I have already written the formulas. Meanwhile, I was waiting for you all to join. Okay, so see, we have up to PV ratio we have done, right? Contribution, sales minus variable cost, or you can have fixed cost plus profit, or you can have sales into PV ratio. Either of the formula can be applied to calculate contribution. For PV ratio, it is contribution upon sales into 100. If you don't have contribution, then sales minus variable cost, or you can go with fixed cost plus profit upon sales into 100. These first three formulas will be applied only when there is one product, one company, one situation, one year. Okay. If there are two situations, there are two companies or two products, so anything which is more than one, then you have to apply this type of formula. Change in profit upon change in sales into 100. Okay. Change means you need something. If you want to calculate change means the difference. So to calculate difference, you want more than one product, no, or more than one company. So you want to compare. So for comparison, there should be more than one. Okay. Is it clear up to PV ratio, everybody? Yes, sir. Now, let us quickly begin with next three formulas. First is BEP ratio, means according to the sequence number, it is third one, BEP. What is BEP? Break even point. If you want me to write full form, it is break even point. Break even point. Now, what do you mean by break even point? Can anyone tell me the meaning of break even point? It is very Nor simple. profit nor loss. Yes, the situation of no profit, no loss. A point where you earn no profit, no loss. That means cost will match with sales price. Okay. So here, if you want to calculate this in rupees, if you want to calculate this in rupees, मतलब amount में अगर calculate करना है, तो formula क्या होगी? Fixed cost upon PV ratio. And if you want to calculate in number of units, then fixed cost upon contribution per unit. Per unit. Fixed cost upon contribution per unit. Did you understand the formula? Fixed cost upon PV ratio will help you calculate the answer of break-even point in terms of rupees. And if you want break-even point in terms of units, how many units of break-even points are there? So you need to calculate accordingly with the help of formula, which is fixed cost divided by contribution per unit. Okay, Yes, sir. yeah. Yes, sir. Write it down. Write it down. Now next, should we go on? Yes, sir. Yeah, margin of safety. Next point is margin of safety. What do you mean by margin of safety? Let me explain you. Suppose your break-even point is 5,000 units. If you sell your products above than 5,000 units, you will earn profits. If you sell your products below 5,000 units, you will not earn profits, you will suffer losses. So 5,000 units is the safety point. You have to sell 5,000 units minimum, so that if you're not earning profits, at least you are not suffering losses also. Are you getting my point? Yes, sir. Margin of safety is that point, it is that point where a businessman is safe, means neither he earn losses, I mean neither he earn profits nor he suffer losses. So margin of safety, if you want to calculate in terms of rupees amount, so the formula is actual sales in rupees minus BEP sales in rupees. What is BEP sales? Break even point, where there is no profit, no loss. Now suppose break even point is 5,000 rupees, 5,000 or 10,000 rupees. Actual sales is 12,000 rupees. So 12,000 minus 10,000 is 2,000. So 2,000 rupees is margin of safety. You don't have to go below 2,000. If you go below 2,000, then maybe a point comes where you will Suffers a suffer the loss. losses.
then maybe that situation comes where you will in the future where you will suffer losses. So you don't have to go below those 2000 points. Sorry, 2000 rupees. Is that clear, everybody? Yes. Try to understand with the Yes. logic. Actual sales minus BEP sales. That means BEP sales is that point where you don't earn any profit, where you don't suffer any loss. So BEP sales, actual sales will be deducted from BEP sales. That means suppose 12,000 is actual sales and BEP sales is 10,000. मतलब 10,000 पे आप safe हो. आप समझ रहे हो? 12 में से 10 तक के बीच में कितना डिफरेंस है? 2000. 2000 से नीचे नहीं जाना, नहीं तो लॉस होने के चांसेस आ गए आपके. सो 2000 वाला जो रुपीज है ना, अमाउंट में अगर देखूं तो 2000 रुपीज से नीचे नहीं जाने का. दैट इज माई सेफ पॉइंट. आई एम प्लेइंग सेफ. ठीक है. और अगर आपको रुपीज में एक और फॉर्मूला चाहिए हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, ब्रेक इवन पॉइंट की रुपीज वाली फॉर्मूला और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रुपीज वाली फॉर्मूला. ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला में क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की पॉइंट में क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. आप है ना ऐसे याद करो. देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ हम कब होंगे? जब प्रॉफिट अर्न करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट अर्न करते तो हम सेफ होते हैं ना. मैं बच्चों को ना ऐसे याद हिंट देती हूँ बच्चों को, तो याद रह जाता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होती है. देखो एग्जाम में ना ऑलरेडी हम स्ट्रेसफुल होते हैं, फुल स्ट्रेस से भरे हुए होते हैं. सो सिंपल फॉर्मूलाज हैं पर फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज अवर माइंड इज ऑक्यूपाइड विद स्ट्रेस. तो बाकी जो सिंपल चीजें ना वो दिमाग से निकल जाती हैं. अब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो दोनों सिमिलर लगती हैं. तो एग्जाम के टाइम पे ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट में था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. वेरी सिंपल. उस टाइम पे ये याद करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सेफ मैं कब हूँ? जब मैं मिनिमम प्रॉफिट अर्न करती हूँ. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला में आएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी. प्रॉफिट कहाँ पर आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. इज दैट क्लियर विद एवरीथिंग? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा. अभी मार्जिन ऑफ मैम सेफ्टी. यस बोलो बोलो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और बार समझाओ ना, वो 2000 वाला लॉजिक समझा नहीं. मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अगर नीचे चले गए तो लॉस हो जाएगा, मतलब लॉसेस अकर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सेफ्टी मतलब वो ये पॉइंट पे आप रहो सो दैट यू आर सेफ. अब वो पॉइंट कैसे निकालूंगी मैं? अगर रुपीज में कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स. ठीक है. अब रुपीज ही लेंगे ना, दोनों का रुपीज लेंगे तो आंसर भी रुपीज में ही आएगा. तो अब कैसे निकालेंगे? देखो एक्चुअल सेल्स समझो 12,000 और बीईपी सेल्स कितनी थी? 10,000. बीईपी सेल्स का मतलब होता है ये वो पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर आपने 10,000 रुपए की सेल्स करी हुई है, मतलब आपका खर्चा भी 10,000 रुपए का हुआ था, तभी तो वही बीईपी सेल्स है ना. बीईपी सेल्स का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. यानी कि अगर 10,000 रुपए की सेल्स करी हुई है तो कॉस्ट भी तो 10,000 रुपए की खर्च हो चुकी है ना. कॉस्ट भी आपका 10,000 हो चुका है. तो 10,000 कॉस्ट 10,000 सेल्स यानी कि बीपी. बीपी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी हुई है? 12,000. तो 12,000 में से बीपी सेल्स कितना है? 10,000. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2,000. सो 2000. 2,000 इज माई सेफ्टी पॉइंट. 2,000 रुपीज की वजह से मैं सेफ हूं ना. आप समझ रहे हो मेरी बात? बी इसमें ना बीईपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बीईपी 10,000 से आपको नीचे तो जाना ही नहीं है ना, नहीं तो लॉस हो जाएगा. तो 10,000 से ऊपर होगा ना, वो आपका सेफ्टी पॉइंट होगा. अभी कैसे पता चलेगा 10,000 से कितना ऊपर? किसके हेल्प से पता चलेगा? एक्चुअल सेल्स. आपने वाकई में मार्केट में कितना सेल्स किया? 10,000 से ऊपर ही करना है, पर कितना ऊपर किया वो चेक करो. अच्छा चेक करेंगे तो पता चला 12,000 की सेल्स की है, तो 12,000 माइनस 10,000 तो आपका 2,000 सेफ्टी पॉइंट है. अभी समझा? हाँ मैम समझा. हाँ. अगर 2,000 से नीचे आ गए ना तो लॉस होने के चांसेस अभी ऊपर आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने बीईपी पॉइंट को टच कर दिया ना.
समझा? बीईपी के पॉइंट को टच कर दिया, 10,000 की तरफ आने लगे हो आप, तो 10,000 की तरफ आने लगे हो तो चांसेस हैं कि आपकी सेल्स कम होती जा रही है, इतनी कम हो रही है कि 10,000 से भी कम हो जाएंगी तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से सेफ्टी पॉइंट है 2000 रुपीज के टर्म्स में, यूनिट के टर्म्स में नहीं। अभी मैं यूनिट बताने वाली हूँ, रुक जाओ, पर पहले रुपीज में समझा सबको? यस मैम। हाँ, अभी जो आपने रुपीज की दूसरी फॉर्मूला लगाई थी वो थी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। बहुत बार है ना एक्चुअल सेल्स नहीं दिया होता है, कोई बात नहीं, एक्चुअल सेल्स नहीं दिया पर प्रॉफिट तो दिया है ना, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, मतलब प्रॉफिट मैंने अर्न किया 40,000 और पीवी रेशियो था 20%, मतलब 40,000 अपॉन 20% से मुझे पता चल जाएगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। दोनों का आंसर सेम आता है। अगर ये फॉर्मूला लगाने से 2,000 रुपीज आएगा तो ये फॉर्मूला लगाने से भी रुपीज 2,000 आना है कंपल्सरीली। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आता है, इसीलिए तो मैंने और लिखा है ना, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, एंड नहीं लिखा है, एंड मतलब दोनों फॉर्मूला लगानी है, और लिखा है या तो ये या तो ये, ईदर दिस और दैट। Are you getting my example? Yes or no? Yes, ma'am. प्रियंका ने पूछा था ना डाउट। प्रियंका बेटा आपने पूछा था? मैम प्रीति। प्रीति, अच्छा प्रीति, डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो ठीक, आगे बढ़े। अभी देखो, अभी हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रुपीस की फॉर्मूला कैलकुलेट की, अब यूनिट्स की फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करूं? यूनिट्स की फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करूं? सेम रुपीस की फॉर्मूला, फर्स्ट वाली रुपीस की फॉर्मूला क्या थी? एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस बीपी सेल्स इन रुपीस, जहां रुपीस है उसको यूनिट्स कर दो, पूरी फॉर्मूला सेम। ये देखो, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीपी सेल्स इन यूनिट्स। अब दिए रहेंगे, ये दिया जाएगा, डोंट वरी। अगर यूनिट्स पूछेंगे ना तो आपको एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स दिए जाएंगे, 1 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स, समझ में आ रहा है? और बीपी यूनिट्स अगर नहीं भी दिया जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकती हूँ ना, बीपी इन यूनिट्स, नहीं निकाल सकती हूँ? बीपी इन यूनिट्स की फॉर्मूला क्या होती है बोलो? हाईलाइट किया मैंने स्क्रीन पे। Fixed cost divided by contribution per unit. वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर, ठीक है? मतलब अगर ये नहीं भी दिया जाएगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, तो ब्रेक इवन सेल्स का मैं यूनिट्स में आंसर निकाल सकती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया, ये मिल गया। बीपी सेल्स इन यूनिट्स मिल गया। अब बीपी सेल्स इन यूनिट्स को, मतलब एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स को बीपी सेल्स इन यूनिट्स से माइनस करना है, और माइनस करने से आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट। ओके, सबको क्लियर है ये यहाँ तक? Yes, ma'am. श्योर, सबको क्लियर है? चलो कम ऑन, आंसर्स दो। Yes, ma'am. ओके यस सर। ओके, चलो अभी हमारी लास्ट फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स की। अब रिक्वायर्ड सेल्स का मतलब क्या होता है पहले ये तो जान लो। रिक्वायर्ड सेल्स का मतलब क्या होता है? कैन समबडी एक्सप्लेन? टारगेट अचीव करने के लिए जो सेल्स हाँ, वेरी Sales गुड वेरी गुड, target. एग्जैक्टली, वेरी गुड। मतलब रिक्वायर्ड सेल्स की मीनिंग होती है आपको अपना जो सेल्स का टारगेट अचीव करना ना, मतलब समझो एग्जांपल ले लो, आप ना जनवरी मंथ में 2,000 यूनिट्स बेच रहे थे सेल्स, लेकिन अब है ना आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, समझो आपको प्रॉफिट है ना बढ़ाना है, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? सेल्स के टारगेट को बढ़ाने से। सेल्स के टारगेट को बढ़ाओ तो प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब सेल्स को बढ़ाना है ना, जो सेल्स को बढ़ाने का पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड सेल्स, ठीक है? तो रिक्वायर्ड सेल्स मतलब कितना मैं सेल्स की पॉइंट को बढ़ाऊं सो दैट मेरा जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ जाए। रिक्वायर्ड सेल्स, कितनी सेल्स मुझे और चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए सो दैट मेरा प्रॉफिट बढ़े।
देखो हमेशा याद रखो, रिक्वायर्ड सेल्स में ना प्रॉफिट नहीं होता है, डिजायर्ड प्रॉफिट होता है। डिजायर्ड वर्ड इज वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्मूला कैसे लगती है, अगर रुपीस में चाहिए, अगर वो बोलता है रिक्वायर्ड सेल्स को रुपीस में कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये इसकी फॉर्मूला है, किसकी, रिक्वायर्ड सेल्स की, रुपीस में। और अगर आपको यही यूनिट्स में लगानी हो तो पूरी फॉर्मूला सेम, सिर्फ डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी में भी तो ऐसे ही था, देखो रुपीस की फॉर्मूला क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यूनिट्स चाहिए तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी रिक्वायर्ड सेल्स में भी यही है, रुपीस की फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट्स चाहिए तो खाली कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट को पर यूनिट लिखना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में, बाकी पूरा न्यूमरेटर सेम। क्लियर हुआ फॉर्मूला? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आप लिखो, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, पहले सारी फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए। गाइस डन? Yes, ma'am. यस, Yes, सारी ma'am. फॉर्मूलाज लिखी? Yes. ठीक है, ओके। नाउ आज अभी 2:10 हुआ है ना, सो वी हैव 15-20 मिनट्स। व्हाट वी विल डू इज छोटा सा एक सम करवाती हूँ, सिंपल। हाँ, आई विल स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन, डोंट वरी। Just let me search out. Okay, now look at this ninth question. Ninth question. If the budgeted output means production, जो final production हो जाता है, final product बन के निकलता है, that is known as output. If the budgeted output is 80,000 units, fixed cost is rupees 4 lakhs. ये 80,000 यूनिट्स प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया हुआ है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 4 lakhs है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रुपीज 20 पर यूनिट, हाँ पर यूनिट, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 10। फाइंड आउट व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ही इज आस्किंग फॉर बीईपी सेल्स, मतलब जब भी वो सेल्स वर्ड यूज करेगा ना, मतलब रुपीस, अमाउंट, अमाउंट, वैल्यू। बीईपी सेल्स निकालना है, मतलब रुपीस में निकालना है, बीईपी यूनिट्स में भी निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, एंड इंडिकेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चाहिए। और अभी उसने बोला तो नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालो कि रुपीस में, तो अगर पॉसिबल है ना तो दोनों में निकालो। पेपर में भी ध्यान देना, अगर वो बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो और उसने क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन दी है, यूनिट्स का भी इंफॉर्मेशन दिया है और रुपीस का भी इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, अगर नहीं पूछते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करें नाइन्थ सम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं इसी में ही आगे कंटिन्यू करती हूँ। दिस इज सम नंबर 9। नाउ सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये देखो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे हम, पर्टिकुलर्स कॉलम,
पर यूनिट कॉलम एंड अमाउंट कॉलम, 3 कॉलम्स बना के दीजिए मुझे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, या पहले आप देख लो, चाहिए तो फिर लिखो, ऐसे करो। अब हेडिंग क्या लिखना रहेगा? बताती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्ट शीट, ये हम मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाया करते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अभी सबसे पहले हम सेल्स, मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स। अभी ध्यान से देखो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 80,000 यूनिट्स। तो आपको इधर लिखना है, हाँ, ब्रैकेट में 80,000 यूनिट्स, ठीक है। इसको आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 80,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, क्वेश्चन में रीड कीजिए। 20। वेरी गुड, 20। तो आप इधर लिखेंगे 20.00। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करोगे जो अमाउंट मिलेगा? सेल्स वेरी गुड, नहीं, यूनिट्स, यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा याद रखो, जब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना होता है तो पर यूनिट को मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करती हूँ, तब तो मुझे अमाउंट मिलेगा। तो मतलब 20 को 80,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आएगा बोलो? 16 लाख। 16 lakhs आएगा ना, बोलो। 16 lakhs। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम। हाँ, अभी सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का भी पर यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10। 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10.00। किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 को, जो अमाउंट मिलेगा मुझे? 80,000 80,000। यूनिट्स। तो 80,000 इंटू 10 इज हाउ मच? 8 लाख। 8 lakhs, और इसको ब्रैकेट में डालना है। क्यों ब्रैकेट में डालना है? क्योंकि लेस होगा। लेस होता है। वेरी गुड, लेस होता है। तो लेस हो जाने के बाद मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 16 माइनस 8 lakhs। 16 माइनस 8 lakhs, तो क्या होगा आंसर कंट्रीब्यूशन का? 8 लाख। यस, 8 lakhs। अब आप मुझे बताओ, 8 lakhs को 80,000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड, तो मुझे मिलेगा पर यूनिट। तो कितना आ रहा है 8 lakhs को 80,000 से डिवाइड करने के बाद? 1 lakh. वेरी गुड, 10 पर यूनिट मिलेगा, 10 पर यूनिट। अभी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट और 4 लॉस। lakhs। हाँ, और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी रुपीस में दिया हुआ है, रुपीस में। तो अमाउंट के कॉलम में मैं लिखूंगी 4 lakhs, और 4 lakhs को हम डिवाइड करेंगे 80,000 से, तो आपको क्या मिलेगा पर यूनिट? कितना मिला पर यूनिट, चेक करो। 5। कॉमन सेंस है। 8 lakhs को 80,000 से डिवाइड किया तो 10, तो 8 lakhs का आधा होता है 4, मतलब 10 का आधा 5। ओके, एनीवेज वो तो आप खुद अपना कॉन्सेप्ट लगाकर क्लियर कर सकते हो। चलो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो या तो प्रॉफिट मिलता है या तो लॉस। पर यहाँ पे मुझे पता है प्रॉफिट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कितना यस, प्रॉफिट 4 मिलेगा? लाख। 8 माइनस 4 lakhs इज 4 lakhs। सो पर यूनिट कितना हो जाएगा? 4 lakhs डिवाइडेड बाई 80,000 इज 5। ठीक है, ये आपने छोटा सा बना दिया फॉर्मेट। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकालना है, बहुत इजी है। देखो, बीपी सेल्स निकालना है फर्स्ट, 1A। अब मुझे 2 बीपी निकालने हैं ना, 2 बीपी। पहली बात तो बीपी निकाल, अच्छा ये फिफ्थ फॉर्मूला नीचे कैसे आ गई? देखो, मैं इसको कट पेस्ट करके ऊपर लेके जाती हूँ।
अभी ठीक है, चलो ये देखो, अब मुझे दो बीईपी निकालने, एक सेल्स में मतलब रुपीस में और एक यूनिट्स में। सो हाउ विल आई डू दैट? बीईपी ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं यूनिट्स, पहले रुपीस ना, पहले रुपीस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होती है, कोई बताएगा फॉर्मूला? बीईपी इन रुपीस, फिक्स्ड Fixed cost कॉस्ट divided by डिवाइडेड बाय PV ratio. पीवी रेशियो। वेरी गुड। तो अब अगर आपका ध्यान है, अगर आपका ध्यान है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे पास है, ये देखो 4 लाख, तो मैं इधर Yes, आ sir. गई, फॉर्मूला में आ गई, यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल्स टू 4 लाख। चलो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे इक्वल्स टू, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 4 लाख, लेकिन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो नहीं है, तो आधे में छोड़ दो, 2-3 लाइंस छोड़ के नीचे आ जाएंगे, स्टार मार्क डालेंगे। हमेशा याद रखो, जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, उसके नीचे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल नीचे। जैसे बीईपी के लिए पीवी रेशियो चाहिए, तो पीवी रेशियो नहीं है तो स्टार मार्क डाल के हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। स्टार मार्क है ना, कन्वर्ट हो जा रहा है अलाइनमेंट में, ओह सॉरी वो पॉइंट में, कोई बात नहीं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो की कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय Contribution सेल्स divided by इनटू 3 multiplied by 100। हाँ मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने ऊपर कितना निकाला था? 8 lakh. 8 lakhs डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स 16 lakhs 16 lakh. 16 lakhs इनटू 100, तो मतलब मेरा पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी फटाफट। 50. 50%। तो मतलब अभी मैं ऊपर फॉर्मूला में जहाँ पे मैंने लाइंस छोड़ी थी, वहां पे मैं 50% लिख सकती हूँ। और अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 लाख डिवाइड बाय 50, बस खत्म। नहीं, रॉन्ग है। 4 lakhs divided by 50 परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 लाख डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू करोगे ना, तो आंसर अलग आएगा। और 4 lakhs डिवाइडेड बाय 50 परसेंटेज करोगे ना, तो आंसर अलग आएगा। आप करके देखो, दोनों का आंसर चेक करो। 4 lakhs डिवाइड बाय 50 परसेंटेज चाहिए मुझे, तो बोलो 8 कितना आ रहा lakhs. है? 8 lakhs वेरी 8 lakhs गुड। मतलब आपका बीपी रुपीस में कितना आया? बीपी रुपीस 8 lakh. 8 लाख। अच्छा ठीक है, अब मुझे निकालना है, ये आपने निकाला 1A, ये 1A निकाला ना आपने, अब आपको निकालना है B, ठीक है। ये आपको निकालना है B, BEP इन यूनिट्स, BEP इन यूनिट्स, ओके। तो BEP इन यूनिट्स की फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? फिक्स्ड कॉस्ट, Fixed cost divided by contribution per unit. सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करना है, दैट्स इट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में पर यूनिट, ठीक है। तो मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4 lakhs 4 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर 10 यूनिट। देखो मेरी बात सुनो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास नहीं था, लेकिन ऊपर टेबल में तो अब मेरे पास है ना आंसर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अब तो चलो मैंने टेबल नहीं भी बनाई होती तो भी तो सिंपल है ना, देखो क्वेश्चन देखकर ही समझ में आता है। पर यूनिट चाहिए ना कंट्रीब्यूशन का, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों पर यूनिट माइनस करोगे तो आंसर भी तो कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट में ही मिलेगा ना। सो 20 माइनस 10, Yes. आंसर 10। सेल्स माइनस Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट, आंसर कंट्रीब्यूशन। तो मुझे मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10। एनीवेज मेरे पास टेबल में भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो मतलब इन शॉर्ट 40,000 units. यस। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट है कि रॉन्ग है। अभी मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। ये 40,000 यूनिट्स राइट है रॉन्ग है, कैसे वेरीफाई करूँ? बहुत सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो। एक मिनट, हाँ मैं अभी आपको बताती हूँ। कंट्रीब्यूशन हाँ अभी बताती हूँ, देखो सबसे पहले तो ये देखो कंट्रीब्यूशन की यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स
कितने बीपी यूनिट्स का मतलब होता है कितने यूनिट्स को आप बेच रहे हो, जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। कितने यूनिट्स को बेच रहे हो जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आते हैं। कितने यूनिट्स निकाले हमने अभी अभी आंसर? 40,000। अब इसी 40,000 को, ये देखो, ये ना मैं आपको वेरिफिकेशन कोड बता रही हूँ, मतलब सबको पता नहीं होता ये चेक करने का मेथड है। 40,000 को यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो पर यूनिट के साथ। किसके पर यूनिट के साथ मैम? कॉन्सेप्ट लगाओ, लॉजिक लगाओ। कंट्रीब्यूशन सेल्स पर यूनिट। सेल्स, क्योंकि बीईपी का मतलब होता है उतने यूनिट्स को बेचना जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, वो सिचुएशन आ जाए जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कितने यूनिट्स को मैं बेच रही हूँ? 40,000। एक यूनिट कितने का है वो तो पता है ना मुझे। एक यूनिट कितने का मैं बेच रही हूँ? 20 रुपए। अब समझो मैंने 30। बॉटल बनाई है, बॉटल बनाने का मेरा काम है, फैक्ट्री है मेरी, वो एक एक बॉटल मैं 20 रुपीज में बेचती हूँ। अब मैंने अगर 40,000 बॉटल्स बेची, एक एक यूनिट को 20 रुपीज में बेचा, एक यूनिट 20 में, तो 40,000 बॉटल्स कितने में पड़ेंगी? 8 लाख। अब देखो ये 8 लाख क्या आएगा? रुपीज आएगा ना। यस। तो देखो और चेक करो मेरा रुपीज में आंसर जो आया था वो मैच कर रहा है इसके साथ। यस मैम। ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं। 8 लाख 8 लाख। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि मेरा 40,000 यूनिट्स 8 लाख रुपीज राइट है कि रॉन्ग है। ये आप खुद से चेक कर सकते हो, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये मेरे आंसर्स हैं। हाँ, ये जो मैं बोल्ड में लिख रही हूँ ना, ये मेरे आंसर्स हैं। 8 lakhs BP in rupees, 40,000 BP in units। आया समझ में? और हमने इसको ये वेरीफाई किया। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वेरिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में करते हैं अभी। अब उसने क्या पूछा है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, गया नीचे, आया बैक। अभी सेकंड फॉर्मूला क्या पूछ रहा है? सेकंड फॉर्मूला में लेट्स सी, पीवी रेशियो। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस पीवी रेशियो को आप नंबर दे दो चाहिए तो। या ठीक है, मतलब सिंपल हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं ना।